Hi guys, good evening. Am I audible? Roll Yes, number sir. okay. Roll number 38, Harsh. Roll number 38, Harsh. Okay. So today we are going to start another new topic, that is heat treatment. In previous lecture we have covered that kind of cooling curve, especially in case of pure iron. Along with iron carbon diagram we have studied in the last lecture. Now today we are going to understand why we are conducting heat treatment and what are the significance of the heat treatment in the terms of mechanical property as well as microstructural changes on a particular material. Okay, so in most of the case, we will consider the example of the steel while we are studying this heat treatment. Okay, so the first question is, what is heat treatment? Okay, so I hope you all have idea about the heat treatment, that something is heating, and after heating up to a certain temperature, we are cooling this particular material in a certain environment. So this whole process is known as the heat treatment, means heating the material up to certain temperature, and then from that particular temperature, from that desired temperature, we are cooling that same material, okay, in a certain medium or in a controlled cooling rate to change the property so that the performance will alter. Okay, so here during the heat treatment, two things will change. The first one is the microstructure, and the other one thing is the composition or the chemistry. Okay, so heat treatment में हम किसी भी चीज को heat करेंगे up to the desired temperature. Okay, or from the desired temperature we will cool that particular material at a certain cooling rate. So by using this particular process, there are the two changes in the materials. One is the microstructural change and other may be the compositional change. कंपोजिशन चेंज हो सकती है, मीन्स जो कंपोजिशन है उसमें कोई चीज अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, हेट्रोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड उसको कर सकते हैं. होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप उसको हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं. Okay, so but during this heating and cooling process, you have another kind of term that is known as the holding, okay, or the soaking. Okay, another is holding or soaking. What is this holding and soaking, and what is the significance of this holding? So what happens when you heat a particular material in any kind of the furnace? So what will happen? So from the outer surface of the material, heat will transfer into the inner core of the material. तो जैसे जैसे आप हीट कर रहे हो मटेरियल को, बट आप थोड़े से फास्टर मोड में फास्टर रेट से हीटिंग कर रहे हैं, बट उतने फास्टर रेट से मटेरियल हीट जो है अंदर कंडक्ट नहीं कर पा रहा है. आउटर सरफेस तो एक सर्टेन टेम्परेचर तक पहुंच गई, बट इनर सरफेस जो है उस सरफेस तक वो टेम्परेचर एक्वायर नहीं हो पाया. सो इन दैट सिचुएशन वी ऑलवेज कीप द मटेरियल होल्ड एट दैट पर्टिकुलर डिजायर्ड टेम्परेचर फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन. कुछ एक समय के लिए उस टेम्परेचर पे हम मटेरियल को होल्ड कर देते हैं जिससे कि टेम्परेचर होमोजेनाइज हो जाए, मतलब इनर कोर तक भी उतना ही टेम्परेचर हो जाए जो कि हमारे आउटर सरफेस पे है. सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज नोन एज द होल्डिंग, और समटाइम्स इट इज नोन एज अ सोकिंग. ओके, सोक करना, जो कि हम लोग यूजुअली अपने वॉशिंग मशीन वगैरह में भी करते हैं क्लोथ्स को वॉश करने के ड्यूरेशन में. ओके, सो दिस इज एन अनदर टर्म दैट इज होल्डिंग और सोकिंग. और हीटिंग आपको पता है, एक पर्टिकुलर हीटिंग रेट से हम मटेरियल को हीट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं और उसके बाद उसको कूल कर रहे हैं. सो कूल करने का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर
या एक पर्टिकुलर कूलिंग रेट से हम टेम्परेचर को डाउन करके रूम टेम्परेचर पे या डिजायर्ड टेम्परेचर तक लेके आ रहे हैं. सो देर आर ओनली टू चेंजेस, वन इज माइक्रोस्ट्रक्चर एंड अदर वन इज कंपोजिशन. तो क्या हो सकता है माइक्रोस्ट्रक्चर में? हियर फ्रॉम द राइट साइड फिगर्स यू कैन अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन फिगर इज योर वेरी कोर्स ग्रेन्स. ओके, इसको आपने हीट ट्रीट किया एंड देन यू कैन फाइंड अ वेरी small grains after the heat treatment, and sometimes you can have this kind of colonies, well fashioned, well mannered, established colonies you can have in the microstructure. So this kind of feature you can get after the heat treatment. Okay, तो क्या क्या कर सकते हैं हीट ट्रीटमेंट से? सॉफ्ट पार्ट को हार्ड कर सकते हैं, हार्ड पार्ट को और हार्ड कर सकते हैं या सॉफ्ट कर सकते हैं, और कोई अगर सॉफ्ट पार्ट है उस पर आउटर स्किन हम हार्ड कर सकते हैं. करेक्ट. जो मैग्नेटिक है उसको ऑर्डिनरी मटेरियल बना सकते हैं और ऑर्डिनरी मटेरियल को हम मैग्नेटिक बना सकते हैं. एंड समटाइम्स विद इन द कंपोनेंट, कंपोनेंट के किसी पार्ट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हो. ओके, फॉर एग्जांपल इफ गियर इज देयर, ओके, अगर यहाँ पर कोई गियर है और उस गियर के कुछ टीथ्स हैं, तो टीथ की प्रॉपर्टीज आप अलग कर सकते हो और गियर की प्रॉपर्टीज आप अलग कर सकते हो. सो इस टाइप की जो सेलेक्टिव प्रॉपर्टी चेंज होगी दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ हीट ट्रीटमेंट. सो हियर आई हैव क्लासिफाइड द टर्म हीट ट्रीटमेंट. तो हीट ट्रीटमेंट को हम मोस्टली टू टर्म्स में क्लासिफाई करते हैं. वन इज नोन एज द बल्क हीट ट्रीटमेंट, अदर वन इज द सरफेस ट्रीटमेंट. बल्क हीट ट्रीट में पूरा का पूरा मटेरियल, कंपोनेंट का पूरा मटेरियल हीट ट्रीट होता है, उसके पूरे मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज होगी. वेयर एज इन द केस ऑफ द सरफेस ट्रीटमेंट, सरफेस हीट ट्रीटमेंट, only the property of the surface will change. Okay, so if we look inside this bulk heat treatment, so there are 5 main component of this bulk heat treatment. The first one is annealing, second one is normalizing, third one is hardening and tempering, fourth one is mar tempering, and the last one is os tempering. Okay, if we talk about the annealing, so annealing have 4 different categories: full annealing, recrystallization annealing, stress relief annealing, and spheroidization annealing. Okay, so we will study the details in the later slide. If we talk about the surface heat treatment, so we have two kind of the surface heat treatment. One is the thermal and other one is thermochemical. Okay, means मैकेनिकल भी चेंज हो रहा है और केमिकली भी चेंज हो रहा है, देन दिस विल बी नोन एज थर्मोकेमिकली altered heat treatment. Okay, so there we have to study about the carburizing, nitriding, carbonitriding. Okay, and in case of the thermal we have a flame, induction, laser, and electron beam. So this is all parts, all different kinds of the heat treatment which we will cover under the bulk and surface heat treatment. But during the heat treatment we must be careful about the atmosphere, क्योंकि हम कभी कभी कुछ ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे कंपोनेंट को फर्नेस में डाल देते हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी भी हो सकते हैं और एक्सप्लोजन भी हो सकता है. तो हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर को यूज करना चाहिए जब हम हीट ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं. सो टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, मटेरियल में ऑक्सीडेशन भी हो सकता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, या हमारे एनवायरमेंट जहां पर आप उसको रखकर हीट ट्रीट कर रहे हो वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीडेशन में भी देयर. समटाइम्स लॉस ऑफ कार्बन, और लॉस ऑफ कार्बन को कभी कभी हम लोग डिकार्बोनाइजिंग भी कहते हैं, तो लॉस ऑफ कार्बन में भी एग्जिस्ट. और हीट ट्रीट करने के बाद, वाटर टच करने के बाद, या इस टाइप के ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रखने के बाद यू मे हैव सम काइंड ऑफ अपीयरेंस ऑफ द करोजन ऑन द मटेरियल. ओके, तो इस करोजन को भी बचाने के लिए वी मस्ट यूज द प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर. अलोंग विद दैट, जैसा भी मैं बता रहा था कि कभी कभी कुछ मटेरियल्स को हम हीट ट्रीट करते हैं, फर्नेस में रखते हैं, एंड सम काइंड ऑफ एक्सप्लोजन में टेक प्लेस, सम काइंड ऑफ फ्लेमेबिलिटी में टेक प्लेस. तो इन सब चीजों को भी अवॉइड करने के लिए हमें प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर को यूज करना चाहिए. सो व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर वी कैन यूज? ओके, सो इन द केस ऑफ द प्रोटेक्टिव, 3 things are there. One is protective, second one is the reactive, and third one is the purging. पर्जिंग में हम क्या करते हैं, अगर हमने फर्नेस में किसी भी मटेरियल को हीट ट्रीट करने के लिए रखा, तो फर्नेस अगर हमारी ट्यूबुलर फर्नेस है, ओके,
if we have a kind of tubular furnace, so on both the end we will have a kind of steel cap, and the steel cap is now connected with this kind of tube. Okay, और steel cap दोनों साइड से लगी है, ट्यूब दोनों साइड से लगी है. Purging means from one side you will send, you will push some kind of helium gas or argon gas. Okay, helium थोड़ी सी costly है, so in most of the case we will use the argon gas. एक तरफ से argon को आपने पर्ज किया, so what will happen, what is the amount of the oxygen inside this particular tube will come out through this particular tube. Okay, so this kind of working, this kind of process you will do twice or thrice, so the whole oxygen will come out through this particular point, and only the argon will be available in the chamber of this tubular furnace. Okay, so this kind of process is known as the purging. एक तरफ से आप आर्गन को इन करोगे और दूसरी तरफ से आपकी ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती जाएगी. तो इस तरीके से जो आप पर्ज करोगे आर्गन को, या आर्गन को इन करोगे ट्यूबुलर फर्नेस में जो कि क्लोजली कैप्ड है फ्रॉम बोथ द एंड्स, तो इस तरीके से पूरी की पूरी ऑक्सीजन आपकी बाहर हो जाएगी और पूरे आपके फर्नेस के अंदर, ट्यूबुलर फर्नेस के अंदर आर्गन का एटमॉस्फेयर हो जाएगा. ओके, एंड इफ देयर इज अ एटमॉस्फेयर ऑफ आर्गन, देन देयर विल बी very less chances for the flammability inside the tube. Okay, now another one is your reactive. Okay, कुछ non materials की हम लोग, non materials to add some non metallic or metallic elements to the base metal. कभी कभी क्या होता है, हम किसी कंपोनेंट का हीट ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं. कोटिंग करने से क्या, जो उनका नेचुरल बिहेवियर है वो हाइड हो जाता है और कोटेड मटेरियल का बिहेवियर सराउंडिंग में आ जाता है, तो उनका किसी भी एनवायरमेंटल चीज से फिर रिएक्शन नहीं हो पाता है. सो दिस वे वी कैन डू द काइंड ऑफ रिएक्टिव कोटिंग on the material which is going to be heat treated. Protective means to protect metal parts from oxidation or loss of carbon, the other elements from metal surface. Okay, तो यहाँ पर हम लोग दूसरे मेटल्स को सरफेस पे यूज करके प्रोटेक्टिव लेयर वहां पर डेवलप कर देते हैं. सो नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर. तो ये वही चीज है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि प्रॉपर कंपोजिशन एंड कंसंट्रेशन इन अ फर्नेस इज रिक्वायर्ड टू गिव the required surface property for the heat trap part. Loss of atmosphere control can result in unacceptable parts and result in major economy penalty. तो ये वो चीजें हैं कि अगर आप अपना प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर डेवलप नहीं कर रहे हो मटेरियल में या कंपोनेंट में या विद इन द फर्नेस, तो आपको बहुत सारे लॉसेस या हार्मफुल साइड इफेक्ट्स देखने पड़ सकते हैं. तो उनको अवॉइड करने के लिए यू हैव टू फॉलो दिस काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर इन द heat treatment process. Now looking forward for the heat treatment of the steel. Okay, तो अगर आप ध्यान से देखें, so with the help of control heat and control cooling, with the help of controlled heating and controlled cooling, metal of the primary purpose of altering their properties such as strength, ductility, hardness, toughness and machinability. Correct? तो अगर मैं किसी भी मटेरियल को, नॉट ओनली द स्टील, इफ यू आर डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ अदर मटेरियल एंड इफ यू आर हीटिंग इट up to certain temperature, up to some pre-decided temperature, and then control cooling you are conducting, so just because of the control cooling you can change some properties of that particular material. Okay, that kind of property may be strength, ductility, hardness, toughness and machinability. Okay, so finally with the help of heat treatment we can do the strengthening of particular material. We can strengthen a particular material, we can soften a particular material. Okay, just because of some kind of annealing or tempering kind of process. Okay, तो किसी भी मटेरियल को आप स्ट्रेंथन कर सकते हो उसके माइक्रोस्ट्रक्चर को मार्टेनसाइट में कन्वर्ट करके, किसी भी मटेरियल को आप सॉफ्ट कर सकते हो उस मटेरियल की एनेलिंग या टेम्परिंग करके. Okay, so this way we can conduct the heat treatment of the steel. Now, what are the total heat treatment process in case of the steel? So usually in case of the steel, we are using annealing, normalizing, case hardening, precipitation hardening,
tempering, and then quenching. Okay, so these are some processes which are usually used in case of heat treatment of steel: annealing, normalizing, case hardening, precipitation hardening, tempering, and then quenching. Okay, so here again objective of the heat treatment is given. So these kind of objective can also be converted as the importance of the heat treatment. Okay, so as from the first point you can see, to the increase strength, hardness and wear resistance we can do the heat treatment. और यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है कि वो कौन सा प्रोसेस होगा. ओके, bulk hardening or the surface hardening will give the strength, will give the hardness and may increase the wear resistance. तो यहाँ पर मैंने वो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं और ब्रैकेट में मैंने यहाँ शो किया हुआ है वो कौन सा प्रोसेस होगा जिसके थ्रू आपकी ये प्रॉपर्टीज चेंज होंगी या इंप्रूव होंगी. टू इंक्रीज डक्टिलिटी एंड सॉफ्टनेस. ओके, मींस objective of the heat treatment could be to increase the ductility and the softness. Okay, और heat treatment से आप ductility और softness increase कर सकते हैं. That kind of property alteration will do with the help of tempering process or recrystallization annealing process. Okay, with the help of these two process you can do these kind of property alteration. Now the third one is to increase toughness. Okay, so toughness भी हम heat treatment के through कर सकते हैं. Okay, so with the help of heat treatment we can increase the toughness of the material. So to enhance the toughness we must know about the tempering or recrystallization annealing. To obtain fine grain size, बड़े कोर्स ग्रेन है उनसे हम छोटे छोटे ग्रेन्स भी डेवलप कर सकते हैं. फॉर डेवलपिंग स्मॉल ग्रेन्स, to developing in small grains from the coarse grain we must conduct recrystallization annealing. वो एक ऐसा एनेलिंग प्रोसेस जिसमें कि नए नए ग्रेन्स डेवलप हों. So that kind of process is known as recrystallization annealing, then full annealing, and then normalizing. These three processes are there wherein you will have a very new small grains, newly recrystallized grains. Okay, तो यहाँ से आप छोटे छोटे ग्रेन में अपने कोर्स ग्रेन को कन्वर्ट कर सकते हो. Further, and the last one is to remove internal stress induced by the differential deformation. Okay, आपने कोल्ड वर्किंग की किसी मटेरियल की और कोल्ड वर्किंग करने के बाद उसमें कुछ इंटरनल स्ट्रेसेस ट्रैप हो जाती हैं, तो उन इंटरनल स्ट्रेसेस को कैसे रिमूव करेंगे. सो दैट काइंड ऑफ रिमूवल वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस रिलीफ एनालिसिस. ओके, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, कुछ उनके प्रोसेस लिखे हुए हैं. सो दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर एग्जामिनेशन. कुछ प्रॉपर्टी दी जा सकती हैं और पूछा जा सकता है इस प्रॉपर्टी को कैसे अल्टर करेंगे, तो आपको प्रोसेस ऑब्जेक्टिव में दिए हो सकते हैं, या समटाइम्स यू विल हैव नंबर ऑफ प्रोसेस इन क्वेश्चंस एंड आंसर मे बी इन द टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी और एनी काइंड ऑफ वाइस वर्सा. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस यहाँ डेवलप किए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड से. सो प्लीज बी केयरफुल. नेक्स्ट वन इज मशीनेबिलिटी. मशीनेबिलिटी तभी अच्छी होगी जब मटेरियल सॉफ्ट होगा, और मटेरियल सॉफ्ट तभी होगा जब आप उसकी फुल एनेलिंग या नॉर्मलाइजिंग कर देंगे. मींस एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस ट्रैपिंग इज देयर, सो मटेरियल इज नॉट डक्टाइल, नॉट सॉफ्ट, तो उसकी नॉर्मलाइजिंग करके या फुल एनेलिंग करके आप उसको सॉफ्ट बना लेंगे और सॉफ्ट मटेरियल आराम से मशीनेबल होता है. करेक्ट. टू इंप्रूव कटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द टूल स्टील. टू इंप्रूव कटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टूल स्टील. टूल स्टील की कटिंग प्रॉपर्टीज को आप इंप्रूव कर रहे हो, और ये इंप्रूव तभी हो पाएगा जब उसका कटिंग एज, टूल स्टील की कटिंग एज हार्ड हो, और वो हार्ड तभी होगी जब आप हार्डनिंग करोगे या उसकी टेम्परिंग करोगे. ओके, सो फर्दर नेक्स्ट वन इज द इंप्रूव सरफेस प्रॉपर्टी. सो enhancing the surface property you must have idea about the surface hardening, corrosion resistant stabilizing treatment. ओके, क्योंकि सरफेस पे अगर आपने करोजन रेजिस्टेंट स्टेबलाइजिंग ट्रीटमेंट कर दिया तो सरफेस की जो प्रॉपर्टी है करोजन रिएक्टिव प्रॉपर्टी वो डिमिनिश हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. ओके, एंड देन फर्दर हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, सरफेस ट्रीटमेंट. ओके, सो हियर आर फ्यू डिफरेंट प्रोसेसेस टू इंप्रूव द सरफेस प्रॉपर्टी. क्योंकि सरफेस प्रॉपर्टी केवल हार्डनेस बढ़ाने के लिए नहीं,
बल्कि और कुछ इश्यूज के लिए भी की जा सकती है, जिनमें कि आपका कोरोजन रेजिस्टेंस एक मेन प्रॉपर्टी है। देन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज you can improve through this heat treatment, and for improving the electrical property you must know about the recrystallization, you must know about the tempering, or as well as the age hardening. And the last one is the magnetic property. Okay, so magnetic property you can enhance with the help of hardening as well as the phase transformation, because you know from your iron carbon diagram that in certain phase, though phases are same, alpha phase in both the cases where the your steel, this iron carbon have this kind of magnetic property, and in the case of non-magnetic property, again the phase is a kind of alpha phase. Okay, so phase transformation is there, but in the case of gamma or delta phase, there is no kind of magnetic property. तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन भी आप हीट ट्रीटमेंट के थ्रू कर सकते हैं, और उससे आप अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी अल्टर कर सकते हैं. Okay, you are noticing that I am using word alter. Okay, so why alter? Because alter may be connected to enhancement or in decrease the concern values. Okay, alter का मतलब change करना, और ये जरूरी नहीं कि हमेशा कोई भी वैल्यू बढ़ाने के लिए ही हीट ट्रीटमेंट किया जाए. So with the help of heat treatment we can also reduce certain property. Okay, so here I'm going to detail about the term annealing. Okay, so क्या कर रहे हैं annealing में? So in annealing हम मटेरियल को सॉफ्ट बना रहे हैं as possible. With the help of annealing we can soften our material as we can. Okay, so here you can identify this particular figure which is shown on the right side. This is nothing, it is only a iron carbon diagram. Okay, so iron is 100% at this particular point as written over here, and carbon is initially starting from 0% up to 1.8%. Okay, and from this line you can know that this is a kind of your electrolyte point, जो कि हम लोगों ने भी अपने लेक्चर में पढ़ा था, और यहाँ पर ये आपका अल्फा आयरन है, करेक्ट, और यहाँ पर आपका हाइपोइलेक्ट्राइड स्टील बनेगा, क्योंकि 0.8% कार्बन से कम अमाउंट में हाइपोइलेक्ट्राइड है, और 0.8% कार्बन से लेके 2% कार्बन तक आपका हाइपर यूटेक्टाइड स्टील रहेगा. करेक्ट. तो हम करते क्या है कि जब हमें हाइपोइलेक्ट्राइड स्टील की बात करनी हो, हाइपोइलेक्ट्राइड स्टील की एनलिंग करनी हो, so are heated above upper critical temperature. Okay, so now the question is what is the amount of the upper critical temperature? So this particular eutectile temperature is known as upper critical temperature in case of annealing of the steel. Okay, and especially in the case of the hypoeutectile steel. अगर आपसे पूछा जाए कि हाइपोएटक्टाइड स्टील के केस में अपर क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो आपको अपर क्रिटिकल पॉइंट एटक्टाइड टेम्परेचर बताना है, जो कि 723 भी है, कुछ बुक्स में 727 भी है, और कुछ बुक्स में 725 भी है. So there is no any issue about the 5 or 7% plus minus degree centigrade. Okay, so how we are going to conduct the annealing of the hypoelectric steel? तो हाइपोइलेक्ट्राइड स्टील को सबसे पहले तो हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, जो कि हमारा 723 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहां तक हम इसको हीट करेंगे. एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए हम उसको वहां पर होल्ड करेंगे, जिससे कि पूरा कंपोनेंट, पूरा मटेरियल हमारा 723 डिग्री सेंटीग्रेड एक्वायर कर ले, और उसके बाद हम धीरे धीरे उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे. करेक्ट. जबकि हाइपर यूटेक्टाइड स्टील के केस में हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं, heated above lower critical temperature, and then allow for the slow cool. Okay, so there is a difference of your above upper critical, okay, above upper critical temperature and lower critical temperature. Okay, so lower critical temperature is written over here, which I was telling 723 something. Correct. So this way we can change our material which is hardened in nature, and we are going to conduct the soft behavior of that particular steel.
Okay, still we have two kind. One is hypoeutectide steel and the other one is hypereutectide steel. Okay, यहाँ पर फिगर में आप देखें, आपकी ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक बैंड बना के रखा हुआ है यहाँ पर. ओके, और ये बैंड फिर सीधे गया है. और यहाँ पर मैंने साफ लिखा हुआ है, मैंने क्या मतलब ग्राफ में साफ लिखा हुआ है कि हाइपोइटेक्टाइड स्टील, हाइपो मींस लेस देन 0.8% ऑफ इस कार्बन परसेंट ऑफ स्टील अगर एनेलिंग करना है या उसकी नॉर्मलाइजिंग करना है, तो ये वो टेम्परेचर बैंड है जहां पर आपको इसको लेके जाना है. ओके, इस टेम्परेचर के ऊपर तक थोड़ा सा लेके जाएंगे, फिर कूल करके लेके आएंगे इन केस ऑफ हाइपोइटेक्टाइड स्टील. ओके, और हाइपर इटेक्टाइड स्टील के केस में आपको यहां तक लेके आना है, बिकॉज हेयर इट इज रिटन दैट लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा सा एबव जाना है. तो ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है आपका. आई एम करेक्टिंग माई सेंटेंस विच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. ओके, सो ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है. इस लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर जाना है. सो हेयर आई दिस पर्टिकुलर फिगर इज शोइंग यू अ बैंड ऑफ द टेम्परेचर. तो हाइपर यूटेक्टाइड स्टील का अगर आपको एनेलिंग करना है, तो आपका टेम्परेचर कुछ 20 डिग्री बियॉन्ड योर 723 विच इज अ काइंड ऑफ लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन. ओके, और अगर आप नॉर्मलाइजिंग की बात करते हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजिंग अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. बट इन द केस ऑफ द नॉर्मलाइजिंग और नॉर्मलाइजिंग ऑफ हाइपर यूटेक्टाइड स्टील, देयर इज अ काइंड ऑफ टेम्परेचर बैंड जो कि आपका ये है. ठीक है, इस तरीके से जैसे जैसे आपका कंपोजिशन बढ़ता जाएगा कार्बन का परसेंटेज, ऐसे ऐसे आपका नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. ओके, अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन ऑफ योर आयरन कार्बन, your normalizing temperature will change. Correct? So further process annealing is there. तो उसमें साफ साफ बताया गया है दे कैन बी हीटेड टू अराउंड 100 डिग्री बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर. तो ये प्रोसेस एनेलिंग कहलाएगी. और इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो कूलिंग होगी दैट मस्ट बी द एयर कूलिंग, मतलब आप एटमोस्फियर में लाकर उसको छोड़ दो. ठीक है, फिर उसको ठंडा होने दो. इससे जो भी कूल होके आएगा वो आपकी एयर कूलिंग कहलाएगी. इस फेरोडाइजिंग का मतलब जो माइक्रो स्ट्रक्चर है उसमें सभी गोल गोल माइक्रो स्ट्रक्चर नजर आने चाहिए. ठीक है, तो इस टाइप की जब फीचर्स को आपको कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे, हाई कार्बन स्टील को यूज करेंगे, उसको एनिलिंग करेंगे जस्ट बिलो द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर टू इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी. क्योंकि जब आपका इक्विएक्स या स्पोरेडाइज्ड माइक्रोस्ट्रक्चर होगा तो मटेरियल ऑटोमेटिकली सॉफ्ट होगा. और जब मटेरियल ऑटोमेटिकली सॉफ्ट होगा तो उसकी मशीनेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. देन नॉर्मलाइजिंग हीटेड अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, जो कि अभी हम इस फिगर में देख रहे थे, ये नॉर्मलाइजिंग की बात है. ठीक है, ये नॉर्मलाइजिंग की बात है व्हेन यू आर डीलिंग विद द हाइपर यूटेक्टाइड स्टील एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद द हाइपोइटेक्टाइड स्टील, तो नॉर्मलाइजिंग आपका ये टेम्परेचर बैंड के थ्रू नजर आएगा. ओके, सो हीटेड अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर सोक्ड एंड कूल्ड इन एयर. सो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि जो भी कूलिंग है वो एयर में है. द कूलिंग रेट इज फास्टर देन द एनिलिंग. बस इस बात का ध्यान रखना है कि एनिलिंग से इसकी कूलिंग रेट फास्टर होनी चाहिए, फास्टर देन एनिलिंग, गिविंग अ स्मॉल ग्रेन स्ट्रक्चर. स्ट्रेस रिलीविंग में हम लोग कंपोनेंट को रिहीट करेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे विच इज नोन एज द होल्डिंग टेम्परेचर और सोकिंग टेम्परेचर. और उसके बाद धीरे धीरे उसको ठंडा करके लाएंगे. तो जब धीरे धीरे ठंडा करके लाएंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर की जितनी भी ट्रैप्ड स्ट्रेसेस हैं वो सारी रिमूव आउट हो जाएगी. ओके, सो हेयर आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ कार्बन स्टील हैविंग 0.6% ऑफ कार्बन. उसकी हार्डनिंग की हम बात कर रहे हैं. तो उसकी हार्डनिंग करने के लिए हमें उसको सबसे पहले फुली ऑस्टेनाइट बनाना पड़ता है. ठीक है, उसके बाद हम उसको होल्ड करेंगे जिससे कि पूरा टेम्परेचर हमारा होमोजेनाइज हो जाए और उसके बाद हम उसको कूल करके लेके आते हैं. तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एफसीसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है.
ठीक है, और उसको हमें बीसीसी में लेके आना है, एफसीसी से हमको उसको बीसीसी में लेके आना है, बट हम क्या कर रहे हैं, उसको वाटर क्वेंच कर दे रहे हैं, तो वो बीसीसी में कन्वर्ट ना होके बीसीटी में कन्वर्ट हो जा रहा है, और बीसीटी इज अ काइंड ऑफ मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर, और ये मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर नीडल लाइक प्लेट्स होती हैं, जिनसे मटेरियल हमारा बहुत ही ज्यादा हार्ड महसूस होता है और बन जाता है। तो जब भी कभी हमें 0.6% आयरन कार्बन स्टील को हार्ड करना हो, सो वी कैन डू दैट काइंड ऑफ एक्सरसाइज। और क्यों हो रहा है ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि just because of the conversion of the microstructure in the martensite phase, which is a kind of needle-like flex, needle-like structure, our material behave a very hard material. Okay, material behave as a very hard material. तो और सर क्यों हो रहा है? Yes? ये मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ये हाई कार्बन स्टील से भी ज्यादा हार्ड होगा या नहीं, अभी ये यहाँ पे देखो, एक दोनों हार्ड है, लेकिन एक में हार्डनेस के साथ बिटलनेस कम है, और एक में हार्डनेस के साथ बिटलनेस भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर जो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर के साथ में हार्डनेस आएगी, उसमें ब्रिटलनेस कंपेरेटिवली बहुत कम होगी, जो आप सीमेंटाइट की बात कर रहे हो दोस्त। ओके सर। ठीक है, हार्ड दोनों होंगे, लेकिन दोनों के हार्डनेस में अंतर क्या है कि एक हार्ड भी है और ब्रिटल भी बहुत ज्यादा है, और दूसरा हार्ड है बट ब्रिटल नहीं है, या है तो बहुत कम इन्फ्लुएंस है ब्रिटलनेस का। सो दिस इज जस्ट बिकॉज वी आर कंट्रोलिंग द माइक्रोस्ट्रक्चर। सर ये 725 पे सर हमें ऑस्टिनेट मिल कैसे रहा है? कहाँ 725 पे ऑस्टेनाइट मिल रहा है दोस्त? सर ये ग्राफ तो वही शो कर रहा है सर यहाँ। नहीं, जो ये ऑस्टेनाइट तो आपको यहाँ मिल रहा है ना, ये देखो। सर जो एफसीसी का पूरा कर्व है वो सर ऑस्टिनाइट ही तो है। हाँ, तो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, यहाँ से ऑस्टेनाइट। अगर हम 0.6% कार्बन स्टील की बात करें, तो आपका कॉलम इस तरीके से स्टैंड करेगा। ओके ओके सर। हाँ ठीक सर है, सॉरी सर। अगर कॉलम इस तरीके से स्टैंड करेगा, तो आपके सारे फीचर इसी के वर्टिकल एक्सिस के अलोंग चेक होंगे अब। ओके, आप जो कह रहे हो ना गौरव, मैं आवाज से पहचानने की यस कोशिश सर कर रहा यस हूँ। सर यस सर यस सर। तो ये जो आप 725 की बात करो, तो 725 पे ऑस्टेनाइट तब मिलता है जब आपका कंपोजिशन यहाँ पर हो, that is a little in middle of 0.8 to 0.9. ओके, कार्बन परसेंट 0.85 के आसपास होगा, तब जाके आपका ऑस्टेनाइट टेम्परेचर जो है सबसे लोअर होगा, एंड दैट इज अराउंड 725 समथिंग। करेक्ट? नाउ देन टेम्परिंग इज देयर। अब टेम्परिंग क्यों करते हैं? अब क्या हुआ, हमने हार्डनेस बढ़ाने के लिए हार्डनेस बढ़ाने के लिए हमने उसकी प्रोसेसिंग कर दी, उसकी मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, तो हार्डनेस तो बढ़ गई दोस्तों, लेकिन मुफ्त में हमें ब्रिटलनेस भी मिल गई, जो कि हमारे लिए सही नहीं है, या किसी भी कंपोनेंट के लिए सुटेबल नहीं है। सो टू रिमूव द ब्रिटलनेस फ्रॉम द हार्डन स्टील, हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को टेम्पर करते हैं। टेम्पर करना मीन्स एक सर्टेन टेम्परेचर पर, जो कि स्टील के केस में 220 टू 300 डिग्री होता है, वहां तक ले जाते हैं, होल्ड करते हैं, और उसको कूल करके ले आते हैं। तो जो बिल्कुल हमारे नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स बने, फ्लैक्स लाइक स्ट्रक्चर बने, वो थोड़े से ग्रोथ ले लेते हैं, और वो ग्रोथ लेने से उनकी क्या है, ब्रिटलनेस मटेरियल की कम हो जाती है, एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज ए टेम्परिंग. So here the question may come as the role of tempering. Option 1, reduce brittleness, reduce hardness, enhance brittleness, enhance hardness, or all. ओके, तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ जनरेट किए जा सकते हैं, तो प्लीज ध्यान से ध्यान दें। ओके, सो हियर सर तो टेम्परिंग में सर जो कूलिंग हो रही है वो सडन हो रही है या स्लो कूलिंग हो रही है? नॉर्मल कूलिंग हो रही है, क्योंकि सडन कूलिंग जब भी कहीं हम करेंगे, तो हम वहां पर मेंशन करेंगे कि हम ऑयल क्वेंच कर रहे हैं, वाटर क्वेंच कर रहे हैं, या साल्ट वाटर के थ्रू क्वेंच कर रहे हैं। नॉर्मल क्वेंचिंग करेंगे, सॉरी नॉर्मल कूलिंग करेंगे। अगर यहाँ पे भी क्वेंच कर दिया ना, तो फिर बात वहीं पर आके रुक जाएगी, तो हमारे चेंजेस आना मुश्किल हो जाएंगे। ओके, तो नॉर्मल कूलिंग करेंगे यहाँ पर हम। ओके सर। नाउ विद दिस पर्टिकुलर ग्राफ वी कैन अंडरस्टैंड, अगर इसको हम लोग अपनी निगाहों में बसा लें, तो हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं।
ये जो ए वाला कर्व है, इट इज नथिंग, इट इज अ काइंड ऑफ नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर बैंड, नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर बैंड। ठीक है, जैसे जैसे कंपोजिशन कार्बन का चेंज होता जाएगा, कार्बन का परसेंटेज चेंज होता जाएगा, आपका नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर चेंज होता जाएगा। और ये जो दूसरा वाला कर्व है आपका, ये वाला, ये आपका एनेलिंग और हार्डनिंग के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप कंपोजिशन के बेस पे टेम्परेचर अपना चेक कर सकते हो कि ये क्या टेम्परेचर होगा अगर आपका 0.8% कार्बन इंक्लूडेड है या 0.2% कार्बन इंक्लूडेड है, तो टेम्परेचर क्या होगा। एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रिप, C strip, is telling you about the temperature band of spheroidizing, or sometimes it is also known as the process annealing. Okay, बस इसमें हमें थोड़ा सा कूलिंग का ध्यान रखना है। एंड this D block is totally tells you about the tempering. Okay, तो जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे आपका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है। बट इसमें हमारा जो बिहेवियर रहता है उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है एज अ फंक्शन ऑफ योर कार्बन परसेंटेज। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर स्लॉट है कि बोले इस ड्यूरेशन से लेके इस ड्यूरेशन तक के टेम्परेचर में अगर आप हीट करोगे और वहां से कूल करके ले आओगे तो आपकी टेम्परिंग हो जाएगी। करेक्ट, और ये फिक्स नहीं है कि आप, जैसे मैंने अभी ये पिछली वाली स्लाइड में बताया कि दैट यू कैन डू द टेम्परिंग बाय हीटिंग अ पर्टिकुलर मटेरियल इन द रेंज ऑफ 220 to 300। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, मटेरियल इतना ज्यादा ब्रिटल होता है, इतना ज्यादा हार्डन और ब्रिटल है कि उसको थोड़ा सा और हायर टेम्परेचर पे ले जाके आपको हीट करना पड़ता है, सोक करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको कूल डाउन करना पड़ता है। ओके, सो दैट्स व्हाई a long range of temperature is given, correct, so there is no definition कि हाँ कितनी हार्डनेस है तो हम कितना टेम्परेचर लेके जाएंगे। ओके, so in the range of this 220 to around 580 you can reduce your hardness, or sorry, you can reduce your brittleness with the help of this particular tempering process। अब ये स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म की बात आ गई है, तो स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म पढ़ी थी कि ग्रेन साइज छोटा हो जाता है तो मटेरियल स्ट्रेंथन हो जाता है, और ग्रेन साइज जैसे ही छोटा होता है हमारी ग्रेन बाउंड्री ज्यादा हो जाती है, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेन बाउंड्री इनहेंसेस एज योर ग्रेन रिड्यूसेस इन द साइज, तो आपका मटेरियल स्ट्रेंथन हो जाता है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप कोई हीट ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक, या कोई ऐसा प्रोसेस कर रहे हो जिस प्रोसेस के थ्रू आपके ग्रेन छोटे हो रहे हैं, ग्रेन छोटे हो रहे हैं तो आपकी ग्रेन बाउंड्री बढ़ रही है। अनदर इशू मे बी इंक्रीज द डिसलोकेशन डेंसिटी, और डिसलोकेशन डेंसिटी आपकी तभी इंक्रीज करती है दोस्तों जब आप कोल्ड वर्किंग कर रहे होते हो, बिकॉज ड्यूरिंग द कोल्ड वर्किंग अ काइंड ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमेना अपीयर्स। स्ट्रेन हार्डनिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, सॉलिड सॉल्यूशन हार्डनिंग भी हम लोगों ने पढ़ी है, हम लोगों ने सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग वर्ड पढ़ा है, तो strengthening means somehow you are hardening your material। okay, so I'm not going into the detail। precipitation hardening भी हम लोगों ने पढ़ा है, dispersion hardening भी पढ़ा है जब हम मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट की बात कर रहे हैं जहां पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट मैट्रिक्स की तरह बिहेव कर रहा है और दूसरा एलिमेंट जो है एज ए रेनफोर्सिंग मटेरियल बिहेव कर रहा है, so that kind of dispersion hardening we have also gone through when we are talking about the strengthening mechanism। okay, तो यहाँ पर एक माइक्रोस्ट्रक्चर दिखाया है, इस माइक्रोस्ट्रक्चर में आप देखो, ये माइक्रोस्ट्रक्चर, यस एनीवन वांट्स टू से समथिंग? ओके, नथिंग। ये माइक्रोस्ट्रक्चर दिखाया है, तो अब इस माइक्रोस्ट्रक्चर में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो शेप है किसी ग्रेन की, तो हम इसको इक्विएक्स ग्रेन भी कह सकते हैं और स्पेरोडाइजेशन भी कह सकते हैं। और ये छोटा सा ग्रेन देखो, मैं सर्किल कर रहा हूँ उस ग्रेन के ऊपर, ये छोटा सा एक ग्रेन इसके बीच में दिखाई दे रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ रिक्रिस्टलाइज्ड ग्रेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको चीजें पहचानने की कोशिश करा रहा हूँ कि इस टाइप का अगर कोई छोटा सा ग्रेन डेवलप होगा किसी ग्रेन बाउंड्री पे तो वो रिक्रिस्टलाइज्ड ग्रेन कहलाएगा। ऐसे रिक्रिस्टलाइज्ड ग्रेन बहुत सारे डेवलप है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, एक यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे से ग्रेन्स अगर आपके डेवलप हो जाएंगे तो ग्रेन बाउंड्री का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा
हो जाएगा और मटेरियल आपका स्ट्रेंथन कहलाएगा. And this formula, which is known as the Hall-Petch equation, with the help of this Hall-Petch equation, we can also prove that on increasing or decreasing the grain size, the yield strength of the material enhances. Okay, so here I have given the details about the precipitation hardening. एज हार्डनिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जब एजिंग पढ़ रहे थे, करेक्ट. और एजिंग में हमने बताया भी था आपको कि आर्टिफिशियल एजिंग और नेचुरल एजिंग दो प्रकार की हमारी एजिंग होती है. क्वेंचिंग आपको पता है, कूल करना, ठंडा करना. अब कैसे कूल कर रहे हैं? सो देयर आर मेनी वेज. वन इज वाटर, जिसमें कि सबसे फास्ट कूलिंग रेट आपको मिलता है. सेकेंड वन इज ऑयल. थर्ड वन इज मोल्टन साल्ट. देन गैस और एयर. Okay, so these are some mediums through which we can quench our material or we can cool our medium. Okay, cool our material. Okay, इनमें सबका जो cooling rate है वो different है, and on the basis of the cooling rate we can alter our microstructure. Another important topic is carburizing, nitriding, कार्बोनाइट्राइडिंग एंड साइनाइडिंग. ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो कि डिफ्यूजन हार्डनिंग के टर्म्स में जाने जाते हैं या डिफ्यूजन हार्डनिंग के सब प्रोसेस हैं. ठीक है, इसमें मटेरियल हार्ड होता है किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन प्रोसेस से. मतलब एक दो मटेरियल है, एक मटेरियल से कुछ कार्बन निकलता है और दूसरे मटेरियल के सरफेस पे जाके ऐड हो जाता है. सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज नोन एज दिस काइंड ऑफ डिफ्यूजन हार्डनिंग. इसमें सबसे पहला कार्बोराइजिंग है, फिर नाइट्राइडिंग है, फिर कार्बोनाइट्राइडिंग है और साइनाइडिंग है. ठीक है, तो केस हार्डनिंग की बात हम कर रहे हैं अगर, तो केस हार्डनिंग, केस का मतलब कोई आउटर सरफेस, हार्डनिंग मींस हार्ड. किसी चीज की अगर आउटर सरफेस को आप हार्ड कर रहे हो, सो दैट इज नोन एज द केस हार्डनिंग. ओके, सो हियर इट इज वेल रिटन. हार्ड आउटर स्किन गिव्स अ हार्ड आउटर स्किन ओवर ए सॉफ्टर कोर ऑन द मेटल. ठीक है, तो जितने भी आपके गियर टीथ्स वगैरह होते हैं, इन सब में हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं जिससे कि टीथ हमारे थोड़े से हार्ड हो जाएं, स्ट्रॉन्गर हो जाएं. क्यों? क्योंकि शुरुआत से हम स्ट्रॉन्गर या हार्डर मटेरियल नहीं यूज कर सकते हैं. अगर शुरुआत से हमने हार्डर मटेरियल गियर बनाने के लिए यूज किया तो हमारी मशीनिंग बहुत डिफिकल्ट होगी. तो शुरुआत में हम सॉफ्टवेयर मटेरियल लेते हैं जिससे कि हमारी मशीनिंग ईजी हो, हमारी शेप फॉर्म हो जाए, और उसके बाद जब शेप फॉर्म हो जाती है तो जहां हमें हार्ड बनाना चाहिए वहां पर हम हार्ड केस हार्डनिंग के थ्रू बना लेते हैं. तो हेयर द एग्जांपल्स आर गियर टीथ, शाफ्ट, बियरिंग, फास्टनर्स, पिंस, ऑटोमेटिव, क्लच प्लेट्स, ओके, एंड टूल एंड डाइज. यहाँ पर क्या है? सरफेस हार्ड होनी चाहिए जिससे कि वियर हमारा कम हो. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द केस हार्ड. पैक कार्बोराइजिंग में क्या होगा? ये जितने भी आपको बॉल्स सर्किल्स दिखाई दे रही हैं, ये बॉल्स और सर्किल्स आपकी किसी एक कंपोनेंट की हैं जो कि नेचर में बहुत ज्यादा सॉफ्ट है. एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू हार्डन दिस पर्टिकुलर मटेरियल. तो हार्ड तभी होगा जैसे इसमें कार्बन कंटेंट आप इसका इनहेंस कर दें. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एक कार्बन रिच मटेरियल को इसके पास लेके आते हैं, इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं, एक सर्टेन टेम्परेचर तक इसको हम हीट करते हैं, और जैसे ही सर्टेन टेम्परेचर तक आप हीट करते हो तो कार्बन क्या है, इसमें डिस्पर्स होना शुरू हो जाता है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, डिस्पर्स होना शुरू हो जाता है. तो कार्बन यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल साइड से वहां पर बैठना शुरू हो जाता है. और जितनी देर आपको करना है, जितनी देर करना है मीन्स जितना इसको हार्डन करना है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस, आप इसको उतनी देर के लिए अंदर रख सकते हो और अपने मटेरियल को हार्ड कर सकते हो. सो कुछ भी नया नहीं हो रहा है. यहाँ कार्बन रिच जो मटेरियल है, उस कार्बन रिच मटेरियल से कार्बन आ रहा है और इस सॉफ्टवेयर मटेरियल के अंदर फिट हो रहा है इंटरस्टिशियल साइड पे एक सर्टेन ड्यूरेशन में, और उसके बाद ये पूरा मटेरियल जो है वो आपका हार्ड हो जा रहा है. सो दिस इज नोन एज पैक कार्बोराइजिंग. पैक कार्बोराइजिंग. अनदर कार्बोराइजिंग इज व्हाट, हमने इस पर्टिकुलर रॉड को हार्ड करना है. ठीक है, और नाम है इसका इंडक्शन हार्डनिंग. और इंडक्शन हार्डनिंग में क्या कर रहे हैं, एक इंडक्शन कॉइल के थ्रू हम इसको हार्ड कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर लोकेशन को. फॉर एग्जांपल हमें मान लो यहां से लेके यहां तक के पोर्शन को हार्ड करना है, तो हम केवल इतने में ही कॉइल को पहनाएंगे. ओके, इतने को ही कॉइल को पहनाएंगे
और कॉइल को जैसे ही हम करंट देंगे तो यहाँ इंडक्शन हीटिंग डेवलप हो जाएगी, और इंडक्शन हीटिंग डेवलप होने से यहाँ का मटेरियल हार्ड हो, सॉरी, यहाँ का मटेरियल हीट होगा, और उसके बाद हम करंट फ्लो बंद करके सीधे जेट से इसको कूल कर देंगे, तो जो इसकी सरफेस है वो हमारी हार्ड हो जाएगी। ओके, ऐसे ही कभी कभी हम क्या करते हैं, इंडक्शन हीटिंग ना यूज करके कुछ फ्लेम के थ्रू मटेरियल को हीट करते हैं, और जैसे ही मटेरियल की आउटर सरफेस हीट हो जाती है वैसे ही हम उसको कूल कर देते हैं थ्रू वाटर जेट, सो दैट इज कॉल्ड एज फ्लेम हार्डनिंग। ओके, सो इसमें क्या करेंगे, फ्लेम के थ्रू इसको हीट करने की कोशिश करेंगे, और यू नो वेल कि आउटर सरफेस सबसे पहले हीट होगी, धीरे धीरे हीट का कंडक्शन इनर कोर की तरफ होगा, तो हम फ्लेम से बहुत तेजी से आउटर सरफेस को हीट कर देंगे, और जैसे ही हीट सफिशिएंट हो जाएगी हम हीटिंग बंद करके उसको वाटर जेट से कूल कर देंगे, और हमारा आउटर सरफेस जो है वो हार्ड हो जाएगा। ओके, सो मार्टेनसाइट के बारे में आपको बता ही दिया है मैंने, हार्ड होगा, ब्रिटल होगा। ओके, और इसमें कुछ नया नहीं, एफसीसी से हम बीसीसी में कन्वर्जन चाह रहे होते हैं, और वो बीसीसी में कन्वर्ट ना होके बीसीटी में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो दिस इज समथिंग अबाउट द मार्टेनसाइट। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, पैक कार्बोराइजिंग एंड केस हार्डनिंग। ओके, बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, बहुत छोटे छोटे से एप्लीकेशंस हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका रोल बहुत बड़ा है। सर Okay. केस हार्डनिंग एक बार बता दीजिए सर, केस हार्डनिंग। ओके ओके, कोई एक चीज ले लेते हैं दोस्त, जैसे हम गियर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो गियर को बनाने के लिए फॉर एग्जांपल एक डिश ली हमने, फिर उसकी हमने मशीनिंग की और उसमें टूथ प्रोफाइल हमने जनरेट किया, ठीक। अब मशीनिंग करने के लिए तो मटेरियल हमारा सॉफ्ट होना चाहिए ना, अगर हार्ड मटेरियल ले लिया तो मशीनिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो सॉफ्ट मटेरियल लेके हमने मशीनिंग करके गियर का पूरा प्रोफाइल, गियर का पूरा स्ट्रक्चर बना लिया। अब वो मटेरियल है सॉफ्ट, टीथ जो आप देख रहे हो, टीथ कैसे होंगे, टीथ तो ऐसे कुछ पॉइंटेड होंगे ना। अब वही सॉफ्ट मटेरियल अगर टीथ के इस कॉर्नर पर होगा तो सबसे पहले बेंड हो जाएगा। सो नाउ देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ हार्डनिंग ऑफ द टीथ ऑन द आउटर सरफेस, जिससे कि टीथ जो है हार्ड हो जाए और उसमें इस टाइप की बेंडिंग या इस टाइप का इंडेंटेशन ये इफेक्टिव ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसकी आउटर सरफेस को हार्ड कर देंगे, और आउटर सरफेस को हार्ड करने का मतलब क्या है कि उसमें कैसे भी हम कार्बन कंटेंट का एडिशन बढ़ा देंगे तो वो हमारी सरफेस हार्ड हो जाएगी, एंड दैट काइंड ऑफ enhancement of the carbon on the outer surface or on the surface of any kind of component is known as carburizing. Okay, तो ये सारी ये कोई चीजें आपके मेथड केस, नहीं है, मतलब इसका स्पेसिफिक कोई मेथड नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से अगर सरफेस पे कार्बोराइजिंग कर रहे हैं तो सरफेस पे, तो उसे हम केस हार्डनिंग कहेंगे, भले ही हाँ, मेथड कोई सा भी हो। कोई सा भी हो, और कोई सा भी मेथड आप तब यूज करोगे ना जिस टाइप का आपका कंपोनेंट होगा। अब जैसे आपका ये गियर प्रोफाइल है, गियर प्रोफाइल में इंडक्शन केस हार्डनिंग नहीं कर सकते आप, कैसे लगाओगे, कैसे रोल करोगे इंडक्शन ये कॉइल, सर इंडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसमें फ्लेम हार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं, या पैक कार्बोराइजिंग वगैरह है, वो सब चीजें कर की जा सकती हैं, बट इंडक्शन नहीं की जा सकती। तो जैसा कंपोनेंट होगा उसके लिए जो मटेरियल सुटेबल होगा, जो मेथड सुटेबल होगा, उसके हिसाब से आप उसकी हार्डनेस इंक्रीज कर सकते हैं, करेक्ट। सर जो Yes. इंडक्शन, सर जो अपनी इंडक्शन हार्डनिंग है सर, उसमें हम कार्बन तो ऐड कर नहीं रहे नॉर्मली, तो सर उसको कूल कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, तो सर इससे तो जो हमारा मटेरियल है या मेटल है सर, उसकी लाइफ भी तो कम हो जाएगी ऐसे तो। कैसे, मतलब सर हीट करेंगे एंड उसको कूल करेंगे एज कम्पेयर जो टू। आपका मटेरियल है दोस्त, वो मटेरियल अब एक कंपोनेंट की तरीके से जाना जा रहा है, ठीक है। मान लो एक कोई कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल दिस इज द पेन। अब ये पेन एक ऐसे सराउंडिंग में, ऐसे एनवायरनमेंट में काम करने जा रहा है जहां पर इसकी आउटर सरफेस को हार्ड होना बहुत जरूरी है। यस सर। अगर इसकी आउटर सरफेस हार्ड नहीं होगी तो मटेरियल अपने आप कंपोनेंट अपने आप सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना है, इसकी आउटर सरफेस को हार्ड करके देना है। तो इसकी आउटर सरफेस को हार्ड करके देने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखना है कि एक सर्टेन सरफेस, हमें एक बीच का ही लोकेशन हार्ड कर रहा है, वही एक ऐसे एनवायरनमेंट में है
जहां पर हमें वियर हो सकता है, तो बीच का पोर्शन हम थोड़ा सा हार्ड कर लेते हैं, बाकी पोर्शन छोड़ देते हैं, बाकी सॉफ्ट ही बना रहेगा। ओके ठीक है, सर, तो बीच के पोर्शन को केवल हार्ड करने के लिए आपने इंडक्शन के थ्रू इसको हीट किया। अब एक पोजीशन आपकी हीट है और उसको तुरंत हीटेड पोजीशन पे आपने क्वेंच कर दिया, तो वहां पर मार्डेंसिटिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उतनी Yes, सरफेस sir. आपकी हार्ड हो जाएगी। ओके तो सर। इससे पूरा ये समझ में आता है कि हार्ड करने के कई मेथड हो गए। एक तो कार्बन परसेंटेज इनहेंस करके भी आप हार्ड कर सकते हो, दूसरा आप मार्डेंसिटिक ट्रांसफॉर्मेशन ला कर भी आप हार्ड कर सकते हो। यस सर। सर एक डाउट और है सर। हाँ बेटा। सर हम लोअर क्रिटिकल पॉइंट से जस्ट बिलो हीट करते हैं, तो उसी पर्टिकुलर मेथड को सर स्पिरिटाइजिंग क्यों बोलते हैं? स्पेरोडाइजिंग में क्या है कि हमारे जो ग्रेन्स हैं वो लगभग इक्वेक्स गोल गोल टाइप के ग्रेन बनने चाहिए। ठीक है, अब ये ग्रेन्स बनाने के लिए भी हमारी कूलिंग जो है वो बड़ी कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ठीक, और जैसे ही आप इसके ऊपर चले जाओगे तो ये फेज ही पूरा बदल जाएगा। तो हम अल्फा फेज में ही रह के इसको हीट करते हैं और धीरे से कूल करके लेके आ रहे हो, तो ग्रेन्स हमारे कंट्रोल। अब देखो, किसी भी चीज को आपने हीट किया, एक सर्टेन कंडीशन में डेवलप कर दिया, आप उसको पूरा पर्याप्त समय दे रहे हो डेवलप होने के लिए, कूल होने के लिए, तो जो छोटे थे वो बड़े हो गए। ठीक है, और बड़े कहाँ जाएंगे, बड़े तो ऑलरेडी कंप्रेस्ड हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो एक तरीके से ह्यूमनाइज्ड हो जाता है इन द टर्म्स ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर। तो इसको फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये स्पोरेडाइज्ड हो गया, माइक्रोस्ट्रक्चर पूरा का पूरा गोल हो गया, इक्वेक्स टाइप का माइक्रोस्ट्रक्चर हो गया। तो इससे सर डक्टिलिटी बढ़ जाती होगी? बिल्कुल, हमारी मशीनेबिलिटी बढ़ेगी, डक्टिलिटी बढ़ेगी, मटेरियल सॉफ्ट होगा। मटेरियल सॉफ्ट होगा तो होपफुली डक्टिलिटी बढ़ेगी, और सॉफ्ट और डक्टाइल अगर मटेरियल है तो मशीनेबिलिटी बड़े आराम से आपकी एनहेंस होगी। ओके सर, थैंक्स। Okay, so any further doubt, please call me personally, as it is 4:54. I'm stopping this class. Okay, and I'm also requested 2 extra lectures in rest 2 weeks so that we can complete the syllabus. Okay then, please, thank you, take care. थैंक यू सर।